friends, let us start the chapter limit part 2. Here I have written some theorems regarding limit, that is, if y is equal to fx and y is equal to gx be the two continuous function on the intervals ab, then limit extends to a fx plus minus gx will be turned off to limit fx plus minus limit of gx. Number 2, limit extends to a fx into gx will be turned up to limit extends to a fx, this fx, into limit extends to a gx. Similarly, in the case of divide, if fx divided by gx, limit extends to a, then the limit of fx divided by limit of gx as x tends to a, provided that gx is not equal to 0. Similarly, if the function rise on the degree of r, then the limit of this one is r to the power x tends to a of the function fx. You should remember these theorems of these four types of parts of the limit. So let us move to the next part of the limit, that is the study of limit in greatest integer function and least integer function. Study of limit in fx is equal to greatest integer function and fx is equal to, that is, partial fractional function. As you know, this is the graph of greatest integer function. This is 0, 1, 2, 3, 4, minus 1, 1, 2, 3. So this is the graph of fx is equal to greatest integer function. The domain is R and the range are the integers. So if you take here the limit of the function as x tends to 1 minus, that is left hand side of this one. So what is the result? The value of y to the left of 1 is 0. So this is 0. Similarly, if you take the limit as the right hand side of 1, what should be the value of y? This is the value of y is 1. So this is 1. Similarly, if you take the limit at 3, that is limit x tends to 3 minus fx, that is left hand side of the point 3, the value of y is your 2. This is 2. And if you take limit x tends to 3 plus fx, now what should be the result? The result of right hand limit is your 3. This is 3. So this is your 3. So यहाँ से क्या मिलता है? जब लेफ्ट हैंड साइड किसी इंटीजर पे लेते हो तो उससे एक कम 1 minus 1, that is 0, और राइट हैंड साइड में 1 में 1. Similarly, at the case of 3, the left hand limit is 3 minus 1, that is 2, and the right hand limit is 3 to 3. So what is the result? So result is, इसको आप नोट कर लेंगे, limit x tends to a minus fx is equal to, fx के जगह आप greatest integer function लिख लीजिए. This is your a minus 1 and limit x tends to a plus greatest integer function is a when a belongs to what? If a belongs to the integer. So this is number 1. इस फॉर्मूला को आप याद रखिए. दिस इज ए फॉर्मूला फॉर द limit of
greatest integer function. This is the formula. Now, what is the graph of partial fractional function? This is the graph of partial fractional function. We have already read in part 4 of the topics relation and function. All these graphs are drawn and they are already discussed on part 4 of the topics relation and function. So this is the graph of partial fractional function. So you see, when you take this one here, so limit x tends to 1 minus partial fractional function, the left hand limit, यहाँ से यहाँ पर इसका लिमिट कितना हो रहा है 1, so this is 1, and limit x tends to 1 plus partial fractional function, 1 के जैसे आगे बढ़ोगे this is your 0. So the limit of this function, यहाँ पर आप नोट नंबर 2 लिख सकते हैं. नोट नंबर 2, limit x tends to a minus this one, लेफ्ट हैंड में इसका लिमिट होगा 1 और राइट हैंड में इसका लिमिट होगा what? 0. This is note number 2. Since the left hand limit and right hand limit of both of the functions are different, this is a minus 1 and a. Here the left hand limit is 1, right hand limit is 0. So left hand limit and right hand limit both are not equal. So this function is discontinuous function on integers. Both of the function fx is equal to this one and fx is equal to partial fractional function. Both of the functions are discontinuous on the integers, whereas they are continuous function in between the two consecutive integers. ये दो फॉर्मूला आप याद रखिए, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2. इससे पहले हम लोग मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. सो लेट अस सी some examples of the part of this questions, that is question number 1. Evaluate limit x tends to 1 x sine of greatest of partial fractional function. This is very important question. तो इसको हमको इसका वैल्यू को हमको निकालना है. Since this is your partial fractional function, so we have to take the left hand limit as well as the right hand limit. So अगर आप left hand limit लेंगे तो limit x tends to 1 minus x sine of this one, that is x minus 1. तो left hand limit में इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होगा 1. So this is limit x tends to 1 minus x sine of 1 divided by x minus 1. So what is the right hand limit? इसी का जब right hand limit लेंगे तो limit x tends to 1 plus x sine partial fractional function x minus 1. This is limit x tends to 1 plus, this is minus. So x sine इसका वैल्यू होगा 0. इसका जो राइट हैंड लिमिट होता है इसका वैल्यू होता है 0. तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा और साइन 0 कितना होता है 0. So this is equal to 0. So left hand limit is not is equal to राइट हैंड लिमिट. इसका मतलब हो गया द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ लिखेंगे
So limit x tends to 1 x sin partial fraction function x minus 1 does not exist. ये exist नहीं करेगा. So this is very important question. इस क्वेश्चन को आप देखिए. इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं. आज का जो हम लोग का टॉपिक्स है वो पार्शियल फ्रैक्शनल फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लेके है, और इससे पहले एक थ्योरम हम लोग पढ़े हैं. सो चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा जाए. इसको नोट कर लिया आप सब ना. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट limit x tends to a, limit x tends to 0 plus b by x, x minus a. तो चलिए इसको बनाया जाए. 0 प्लस लिया गया है, तो 0 प्लस का मतलब हुआ दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो x अगर 0 माने a का वैल्यू कुछ भी हो जाए, सिंस x is tending to your 0, so इसका वैल्यू होगा 0. That means what? Limit x tends to 0 plus b divided by x, x this is your 0. इसका सिंपल को आंसर था. इसका आंसर सिंपल 0 होगा. चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाए इसी से रिलेटेड. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट लिमिट x tends to 1, x tends to n minus 1 to the greatest integer function. So this is very important question students. क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है. तो इसमें हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, और आप जानते हो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे. लिमिट x tends to n minus this one. So this is minus 1 to the power n minus 1. उसी तरह से राइट हैंड जब लिमिट लेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा दिस इज minus 1 to the power लिमिट x tends to n plus दिस इज minus 1. सॉरी, यहाँ पर ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो इसका वैल्यू n होगा. सो दिस इज योर minus 1 to the power n. So what is left hand limit? This is minus 1 to the power n minus 1. And what is right hand limit? This is minus 1 to the power n. इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. Therefore limit x tends to n minus 1 to the power greatest integer function does not exist. So this is one part of the question. Now in second part, let us take one example. That is question number 4. Discuss the limit of the function fx is equal to 1 minus x square, 0 less than x less than is equal to 1, and x plus 2 1 less than is equal to less than this is x less than is equal to 2, and x square minus 1
when 2 greater than is equal x greater than is equal to 2। तो पहले इसका हम लोग ग्राफिकल एटीट्यूड को देख लिया जाए, इसका ग्राफ क्या बताता है। पहले ग्राफ देख लीजिए। इसका ग्राफ ये 3 भाग में बटा हुआ है, 0, 1, 2 एंड ग्रेटर देन 2। तो इस इंटरवल में 0 to 1 में माने यहां से यहां तक फंक्शन जो है दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर x का वैल्यू 0 बिठाओगे तो यहां पर 1 आएगा, दिस इज 1 0 0 1। एंड इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1 देन दिस विल बी 0। इसका ग्राफ ऐसे होगा क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सिमिलरली 1 पे जब यहां 1 बैठाओगे तो ये 3 होगा, सो दिस इज 1 3 एंड दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। 2 बैठाने से 4 होगा तो ये स्ट्रेट लाइन चला गया, सो दिस इज 2 4 अगेन ग्रेटर देन 2। तो अगर फिर से यहां 2 बैठाओगे तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो हम लिखेंगे टेस्ट एट x इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाते हैं इसको ध्यान में दिया जाए और इसको ध्यान में रखना। यहाँ पर बेसिकली 2 जगह ये डिफाइंड है, 1 और 2 पे। तो क्वेश्चन में लिखाएगा एट x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2। सो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 पे लेते हैं। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, 1 के बाएं तरफ ये फंक्शन है, दिस इज fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां लिखना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 रखने से इसका वैल्यू हो गया 0। और राइट हैंड लिमिट में हमको लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। और इसका जो राइट हैंड पार्ट होगा फंक्शन का, इसके दाहिने तरफ ये फंक्शन है, दिस इज fx इज इक्वल टू x प्लस 2। सो यहां पर लिखना होगा हमको x प्लस 2। ये देख लेना है कि 1 के दाहिने तरफ क्या फंक्शन है और 1 के बाएं तरफ क्या फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको रखा जाएगा और राइट हैंड साइड में इसको रखा जाएगा। नाउ 1 प्लस 2 दिस इज योर 3। सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज 0। एंड व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट, दिस इज योर 3। सो 1 के केस में भी देखो यहां से यहां तक जंप किया है। 1 के केस में पहले 0 आ रहा है, फिर 1 के केस में 3 आ रहा है, 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट पॉइंट आ रहा है। सो यहां पर यह फंक्शन नेचुरली डिसकंटिन्यूअस होगा। तब हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, माने 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमको लिखना होगा टेस्ट एट x इज इक्वल टू 2। तो यहां पर 2 रखेंगे और फंक्शन के जगह 2 के बाएं तरफ फंक्शन क्या है, x प्लस 2 है यहां पर, तो x प्लस 2 रखेंगे। तो 2 डियर स्टूडेंट्स यहां पर 2, ठीक है। पहले तो 2 के बाएं तरफ देख लिया जाए, 2 के दाहिने तरफ देख लिया जाए। 2 के बाएं तरफ अगर 4 आ रहा है तो यह 4, सॉरी यहां पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इसको यहां पर 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, इसको 1 कर दीजिए। और 2 में थोड़ा सा चेंज कर दो, यहां पर 1 कीजिए क्योंकि हमको कंटिन्यूटी शो करना है। तो 2 पे यहां पर हो जाएगा कितना, 3, दिस इज 3। तो 1 पे 0, 2 पे यहां पर 2 होगा, दिस इज 1 पे 2। सॉरी इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा,
हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। तो अब यहां पर इसको 1 रखें, सो दिस इज योर 2। सो राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन होगा, यहां पर जो फंक्शन होगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, पहले 2 था उसको 1 कर दिए, और ये इस तरह से हम लोग इसको बना रहे हैं क्योंकि हमको शो करना था कि यहाँ डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ कंटिन्यूअस है। तो जब आप यहाँ पर फिर 2 लिखेंगे 2 प्लस, तो 2 प्लस में फंक्शन हो गया आपका, यहाँ पर जो फंक्शन है दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 3। यहाँ पर 2 रखने से 3 होगा, सो दिस इज इक्वल, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू 3। दिस इज द लिमिट इज एग्जिस्टिंग। इस तरह से हम कंटिन्यूटी को भी चेक करते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ेंगे लिमिट के बाद। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप याद रखिए, किस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाते हैं इसको याद रखना जरूरी है। तो अब चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं जगह पे जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे। the limit of the function that is x tends to a fx by gx if fa divided by ga is equal to 0 by 0। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें अगर x का वैल्यू a रख दोगे तो 0 बाय 0 क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तो इसमें ध्यान रखना होगा कि जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब है कि fx में जो फैक्टर आएगा x माइनस a लैम्डा, और gx का भी एक फैक्टर होगा x माइनस a लैम्डा, ताकि इसको जब डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा कट जाएगा और आंसर आ जाएगा लैम्डा बाई म्यू। सो हम इस तरह का लिमिट में उस चीज को खोजने का प्रयास करते हैं जिसके कारण जो fx डिवाइडेड बाय gx है वो 0 बाय 0 क्रिएट होता है। जैसे एक एग्जांपल ये है क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 2x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो जब इसमें आप 2 रखोगे, 8 माइनस 8 यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, दिस इज 0 बाई 0। तो अगर आप x का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ बैठाओगे तो नेचुरली आपको 0 बाई 0 मिलेगा। तो जब ये 0 बाई 0 है तो नेचुरली आंसर तो 0 बाई 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है इस तरह का एक फैक्टर आपको मिलेगा और x माइनस a की जगह यहां देखिए दिस इज x माइनस 2। तो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो a क्यू माइनस b क्यू, दिस इज a क्यू माइनस 2 क्यू। सो ये हो जाएगा x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई, इसको फैक्टराइज करने से x माइनस 2 x माइनस 3। तो देखिए x माइनस 2 आ गया, दोनों को कैंसिल कर दीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x2, 4 4 4 ये 12 हो गया, 2 से 1 3 जाएगा से -1, तो दिस इज योर -12। इसी तरह का एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। टेक वन मोर क्वेश्चन।
थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। तो ऐसा करते हैं, यहां पर स्क्वायर नहीं लिखते और यहां पर 4 लगे, यहां स्क्वायर लिख दीजिए, यहां क्यूब, यहां 5 लिख दो, यहां क्यूब लिखो, स्क्वायर लिखो। चलो अब ये बैलेंस हो गया। अगर आप x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 माइनस ये हो गया 0 होगा, और लिखे, मान लीजिए यहां पर लिखे x की स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह का क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। आप जानते हो कि अगर x टेंड्स टू 1 है तो निश्चित रूप से x माइनस 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मिलेंगे। माने इसको जब आप फैक्टराइज कीजिएगा तो यू मस्ट गेट x माइनस 1। तो एक तरीका ये है कि इसको आप x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज वन मेथड। जस्ट आप क्या करो, यहां पर x टू द पावर 5 2x क्यूब माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 को आप डिवाइड कर दीजिए x माइनस 1। दिस इज मेथड नंबर 1। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लॉन्ग प्रोसेस पे मत जाइए, इसका शॉर्टकट मेथड में आना है। तो मुझे पता है कि इसका फैक्टर x माइनस 1 होगा, तो इस x टू द पावर 4 लिख दीजिए ताकि x टू द पावर 4 कॉमन लेने से x माइनस 1 आ जाएगा। इसको जब माइनस किए हो तो इसको जोड़ना भी पड़ेगा, और इसके बाद माइनस एक्स क्यू रखना होगा क्योंकि एक्स क्यू कॉमन लेने से x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस 2 है तो एक यहाँ पर रहना चाहिए ताकि दोनों को बैलेंस करना होगा। प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर कॉमन से x माइनस 1 आ जाएगा, और इसमें से माइनस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 ऑलरेडी आ रहा है। सो अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये दोनों में कॉमन लेंगे x टू द पावर 4 तो x माइनस 1, ये दोनों में कॉमन लेंगे x टू द क्यूब तो x माइनस 1, ये दोनों में कॉमन लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर तो x माइनस 1। ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज ये है, और नीचे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इधर आ जाइए इसमें, यहां पर तो दिस इज योर लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए सब में, तो बचेगा कितना, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 1। तो ये कैंसिल हो गया। अब वैल्यू बैठा दीजिए, कितना होगा ये, तो 1 बैठाने से 1 2 1 1 कैंसिल होगा, माइनस 2, दिस इज माइनस 2 बाई 2। So the answer is what? So limit of the function is your minus 1। तो प्यारे बच्चों, ये सेकेंड पार्ट है लिमिट का, जहां पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पार्शियल फ्रैक्शनल फंक्शन और कुछ थ्योरम्स को देखें और 0 बाय 0 से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए। अगला पार्ट में हम कुछ फॉर्मूला और देखेंगे लिमिट का, और फिर देखते हैं आगे चलकर। तब तक के लिए धन्यवाद।